morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning, everyone. आओ हम शुरुआत करें, किसानों का आभार करें. इसी के साथ शुरुआत करते हैं Day 2, AgriCop 2024. A warm, heartfelt welcome on this second day of 15th AgriCop 2024, which is focused on enriching FPOs. And I'm your host, Dr. Amit Tribhuvan. On behalf of Bombay Chamber of Commerce and Industries, I thank you all for yesterday's overwhelming response. Many people, we have got many registrations, and sure, people are there in this exhibition hall and they'll be coming over here. So today we'll begin with our second day session, Day 2. And to begin, let's recap highlights of Day 1. So for that, please welcome Mr. Chetan Dedhia, Managing Partner, JJ Overseas, and Expert Committee Member, Agriculture and Food Processing Committee, Bombay Chamber. Please give him a big hand, Mr. Chetan Dedhia. Namaskar and good morning to all of you. Sorry we started a little late because we just got to know that there's a big accident in some region near the exhibition and the cars are stuck up over there. But we can't wait a longer time because you people have come on time. So we should respect that also. Okay, so yesterday was a good day. We had some very good insights yesterday. Of course, starting with the welcome of the dignitaries by our Mr. Sandeep Khosla, Director General of BCCI. And then the guest of honors, Mr. Pranab Chakrabarti ji and Mr. Rajan Raje gave the vote of thanks. After that, we had the first session, which was on current and upcoming government schemes for FPOs. And once again, our Dr. Sudhir Goel and our great mentor, as usual, we always love to have him on the stage because he is the man who picks the right question to the right person and gets the right answer from them. So yesterday's first session was very nice. We got very good response from the delegates yesterday who were present. Then after that, the second setup was for about FPO startups and some success stories of FPOs, in which we had the speakers from Ruiya Farmer, and then Pauna Sanskruti Farmer Producer Company and Jackfruit Agro Producer Company. In that also we got a lot of good insights yesterday on how these three companies have started from scratch, what difficulties they faced, what are the problems they were having during the starting stage, how they pivoted to the new crop. Like for an example, the Jackfruit Agro PFC, they were actually not into the jackfruit business. They were earlier into cashew nut growing. And looking at the imports, the cheap imports coming from Indonesia and Africa, suddenly they all decided that what to do now. So they changed to jackfruit, which was a neglected crop, and how now they've turned it into a good export crop, and they've got very good response from South America and some American countries. So that's a very interesting part, and how people should be ready to change whenever there's a demand. After that, the vote of thanks was given by our Sandeep Khosla ji. And today's sessions are also extremely important. All the speakers are wonderful like yesterday, and I hope that all of you all take the advantage of each and every speaker speaking. Thank you very much. Thank you, Mr. Chetan Dedhia. Thanks a lot for this recap. And today we'll begin with our first session, Day 2. आजच्या दिवसाचं दुसरं सेशन जे आहे आपण त्याच्याबरोबर सुरुवात करू. Before that, we all know that this event is organized by Bombay Chamber of Commerce and Industries in association with Kisan. And we all know that this exhibition every year, which we have, it is the India's biggest agricultural exhibition. So many people who are coming over here for the first time, I must tell them that you are visiting India's biggest agricultural exhibition. And our partners, gold partners, SBI, silver partners, Axis Bank, MTS Sandy Harvesting Excellence, Rallies India Limited, which is a Tata enterprise, our bronze sponsors, IDBI Bank, NICAIM, Union Bank,
AgriBazaar, Keto Pharma, and NABARD. So we thank all of them for joining hands for the AgriCop 2024. And today's first session is about the digitalization in agriculture, moderated by Mr. Rajesh Urkude, Digital Food Initiative, TCS. And this session is going to feature Managing Director of Aries Agro, Dr. Rahul Mirchandani, co-founder of Big Heart Agro Private Limited, Mr. Sachin Nanvana, and MD and CEO, NERL, Mr. Saurabh Khanna. So let's welcome them with applause, with a big round of applause. Mr. Rajesh Urkude, who will be the moderator for this session, Dr. Rahul Mirchandani, Mr. Sachin Nanvana, Mr. Saurabh Khanna. And our session is digitalization in agriculture, climate stack, agri stack, Mandi stack. I remember the Digital Agriculture Mission in 2021, from 2021 to 25, which was launched in September 2021 by, at that time, I think Mr. Narendra Singh Tomar, he was the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare. And at that time, 5 memorandum of understandings, MOUs, were signed to advance digital agriculture through pilot projects with Cisco, Ninja Card, Geo Platforms Limited, ITL Limited, National Commodity, and NCDEX eMarkets Limited. The Digital Agriculture Mission 2021 to 25 aims to encourage and speed up projects based on cutting-edge technologies, including AI, blockchain, remote sensing, robots, and drones. So with this little thought, I think, Rajesh sir, you will proceed, and stage is yours, sir. Thank you. Thanks a lot. Before starting the session, I just would like to know who all are representing the FPOs. शेतकरी उत्पादक संघ कंपन्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आहेत? ओके, ग्रेट. अजून कोणी कळेल कोणती, कुठनं आलात तुम्ही? हां, ओके, ग्रेट. सो वी हॅव स्टार स्टडेड पॅनल, पण या पॅनल कडून जास्तीत जास्त घेण्याचा प्रयत्न करा. दे आर स्टॅलवर्ड्स इन व्हॉट दे आर डुईंग. दे नो ॲग्री स्टॅक, दे नो मंडी स्टॅक, and they have been working in this sector since almost a decade, and some of them are already working since last 20-30 years. They know what they are doing, but it's opportunity for us FPOs what we can gain from them. मग ते warehousing असो, micronutrients असो, किंवा ॲग्री इनपुटचं डिस्ट्रीब्युशन असो, प्रत्येक व्यक्ती ते काय करतात त्याच्याबद्दल तर ते सांगणारच आहेत. दे आर गोइंग टू टेल यू व्हॉट दे आर डुईंग, बट इट्स ड्युटी ऑफ द FPO व्हॉट दे कॅन गेन. इफ यू लुक ॲट द हिस्ट्री ऑफ FPOs, शेतकरी उत्पादक और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, it was way back in first decade of 21st century. It was a nascent, hardly there were few 8-10 companies which were formed in Maharashtra. But the second decade saw exponential growth. I recollect working closely with Goyal Sahab in Vidarbha, where there was quite a lot farmers' death, and we associated with him, and we formed first farmer producer company in Varud block of Amravati district, which is dedicated to Santra. Abhi, they are just exporting that Santra, wax coated Santra, to Bangladesh and many other countries. Now, recently, because of Bangladesh turmoil, things are in bad shape, but they are also looking for various markets. जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी. फिर आया MSCP प्रोजेक्ट. MSCP प्रोजेक्ट में कम से कम 400 FPOs इवॉल्व हुई महाराष्ट्र में. एंड आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि महाराष्ट्र हैज़ बिन लीडिंग इन FPO रिवोल्यूशन अक्रॉस द कंट्री. यानी अगर आज भारतवर्ष में 35-40,000 FPOs है, तो शायद 8 से 10,000 FPOs तो अकेले महाराष्ट्र में है.
अभी ये मत पूछो आप कि उसमें से कितने वायबल है और कितने वाइब्रेंट है. ऑफ कोर्स सह्याद्री इज अ आउटलायर, यानी ही इज द एवरेस्ट. एवरीबडी लुक्स अपॉन सह्याद्री एज अ रोल मॉडल. बट बियॉन्ड सह्याद्री आई टेल यू देर आर एटलीस्ट 40 to 50 FPOs. जैसे हमने जैकफ्रूट में देखा है, संतरे में देखा है, मिर्ची में देखा है, हल्दी में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं. दैट वॉज द सेकेंड डिकेड ऑफ FPO revolution in Maharashtra. These organizations are evolving, but 90% of these organizations, because I very closely work with hundreds of FPOs working in procurement, जहाँ की pulses और primarily pulses और oil seeds और paddy procurement करते हैं, तो उनका focus सिर्फ procurement तक रहा है. Many of them are like family-owned FPOs trying to garner the pie of procurement in their zone. लेकिन बहुत कम FPOs है जो कि अपना बिजनेस इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम ग्लैड दैट फ्यू ऑफ देम आर ऑलरेडी इनटू ट्रेसेबिलिटी. वो जो स्पाइसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, दे नो माय बायर इज लुकिंग फॉर ऑल दिस सॉल्यूशंस. एंड द ब्यूटी इज दोज FPOs, दोज हु आर स्ट्रगलिंग, I won't say they are struggling. They know what they want in their business. But unfortunately, even today, they are not shaking hand with the technology. और यहाँ 3 ऐसी हस्तियाँ बैठी हुई है कि they have the solution. अगर कोई FPO, the beauty is after MSCP came your smart के तहत कम से कम 80% of the FPOs have gone in for a go down. Warehousing is another big area across the Maharashtra. At least I am interacting with 150 organizations, those who are struggling with CMA. And here we have a solution in the form of ENWR या फिर electronic receipt. लेकिन adoption rate बहुत कम है. राहुल जी है जो कि एरिस एग्रोवेट रिप्रेजेंट करते हैं, and his organization is across country with almost 9,000 dealers, dedicated distributors. Now you tell me that if some of these FPOs, they become their distributor or dealer, it's a big business opportunity for them. And of course, Big Heart is already working with FPOs. They are directly connected with millions of farmers, but beyond that, they are also working through FPOs. And the beauty is all these FPOs across Maharashtra or the country, they have unfortunately not got onto the digitization bandwagon. एक सादा अगर एखादी FPO में 1000 मेंबर्स है, 2000 मेंबर्स है, तो उनके KYC इनके पास नहीं है. Now MCA, Ministry of Corporate Affairs, has come up with the stringent penalties कि हर मेंबर के पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए. And these FPOs are going to face the music. And that is where all these technological interventions, digitizations are going to help. So this is the background to it. And in that context, as a first round, I would ask Sachin that in his journey of last decade or so, what has been his experience with FPOs and how he has been coping up with the influx of FPOs and engaging with them. Okay. तो FPO के साथ में जो आप बात किए हैं, तो आई एक्सेप्ट आपने भी बोला कि मेजर इशू जो आता है वो माइंडसेट का इशू है. एक प्रोफेशनल एक थॉट प्रोसेस होता है, एक ओनरशिप होती है कि हमें FPO एज अ बिज़नेस और उसको किस लेवल पे लेके जाना है, और उसके लिए एक एफर्ट लगता है. एक बिज़नेस की तरह देखेंगे तो आपको डे नाइट आपको स्पेंड करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा, आपको P&L के बारे में सोचना पड़ेगा. एंड समवेयर वी फेल्ट दैट दिस इज़ अ गैप. आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द इशू, आई फील दिस इज़ अ गैप. एंड दैट्स वेयर बीइंग अ टीम बिग हार्ट वी प्रेफर टू वर्क विद द FPOs. और वही हमारा रिसेंट वैल्यू प्रपोजिशन है कि हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है वो फ्री टू द फार्मर है, एंड जहाँ पे भी आपको मौका मिले आप उसको यूज़ करिए. मैं हल्का सा बिफोर कमिंग ऑन दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू एलोबरेट अबाउट बिग हार्ट. तो हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट टू फार्मर, जहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को. इनपुट्स लाइक सीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट्स, इम्प्लीमेंट्स एट पेन इंडिया लेवल.
इंडिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं है जहाँ पे मेरा कस्टमर ना हो। मंथली हम 3 मिलियन से ऊपर फार्मर्स एंगेज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये तो हो गया इनपुट। वी आर ए नाउ फुल स्टैक प्लेयर। तो हम जो है इनपुट के बाद में जो उनका प्रोड्यूस आता है उसको भी लेके और नेशनल इंटरनेशनल बायर से कनेक्ट करते हैं। और जब नेशनल इंटरनेशनल बायर से कनेक्ट करते हैं तो एक गेप हमें समझ में आया कि वैल्यू एडिशन जब तक नहीं होगी तब तक जितने भी पार्टनर्स हैं उनको उसका वैल्यू नहीं बनेगा। अगर हम रो आयरन खरीद रहे हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता, वैल्यू होता है उससे सुई बनने पे। तो सिमिलर वे हमने SDP सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया और इस प्रोग्राम के अंदर IPM, MRL और गैप प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ताकि आपका जो प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट रेडी रहे। नाउ जस्ट इन नटशेल टेक्नोलॉजी पार्ट की बात करें तो एक क्रॉप डॉक्टर प्रोडक्ट है, आप इमेज अपलोड करें इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आई कैन से लाइक चिली ग्रो कर रहे हैं मतलब इट्स तो आपको इतना एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको नो नीड टू गो एनीवेयर, इट विल सजेस्ट द सॉल्यूशन, यू कैन बाय इमीडिएट, इट्स अ फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन। सिमिलर वे किसान वेदिका जहाँ पे कि कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। तो सिमिलर वे वी बिल्ड अ डिफरेंट प्रोडक्ट, फार्मर सेंट्रिक प्रोडक्ट। Okay, so now let me talk about the FPO. So we see FPO in the core and 4 pillar. They need the input, they have to sell the output, they need the financial and professional support. And that's where we comes in the picture. We can help them to promote their brand, we can help them to improve their input, it means optimize the input capacity and work with us under SDP program where chili is the one where IPM, MRL, but let's say grains, if we talk about maize, where post-harvest is the biggest issue, where aflatoxin is the biggest issue, और वो post-harvest practice से ही solve होगा. So if we understand the, I can say definitely we have to work together and we can share our experience, we can help you to plan your business and then create a value for each other. Thank you, Sachin. See, the beauty is he has solutions for corn or maize. Recently, NAFED and NCCF has also started procuring corn, especially for ethanol and processing industry. They have worked exhaustively in Bihar region, and his experience in Khammam and I would say Khammam and Warangal, especially for spices and chili, is well known. And here, there is opportunities for FPOs from Maharashtra to really hang on or cling on to them and get the benefits. See, the beauty for FPO is keeping your flock together is a big challenge for any FPO. क्योंकि FPO तो लोगों ने फॉर्म कर ली है, वहाँ मेंबर से 1,500 रुपए का मेंबरशिप ली है, लेकिन they are not able to provide the services to them. And that is where these people can really make the difference. And I tell you, in last couple of years, I have been talking to Saurabh's colleague, Sachin, because I had at least 7 FPOs, those who have warehouses, which has been built under some POCRA program, and they are engaging with CMA, Collateral Management Agency, and they were saying कि sir, हमने इस साल 1.5 करोड़ का धंधा किया, 50 लाख का धंधा किया, लेकिन when we बैलेंस शीट अगर हमने क्रिएट की तो हमें रियलाइज हुआ कि हमने गधा मजदूरी की है, लेकिन हमारे को एट द एंड ऑफ द जर्नी पैसा कुछ नहीं मिला है, जो भी मिला वो CMA को देने में हमारा चला गया है. एंड दैट इज वेयर आई वुड रादर सजेस्ट FPOs टू रियली एंगेज विद organizations like NERL, WDRA का accreditation लो, and that's the way to go. That's the way to go because everything is digitized and ENWR really helps not only FPOs but individual farmers. And जो warehousing का भी काफ़ी कुछ ऐसे नहीं कि schemes नहीं है. Warehousing Corporation has already the scheme, लेकिन Warehousing Corporation के scheme में होता क्या है कि अगर कोई किसान उसका माल अगर वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में रखता है तो ऐसा आज तक हमने किसान नहीं देखा कि लाइक मैंने 5 लाख का माल लिया रखा कोलेट्रल, 3 लाख उठाया और बाकी का माल उठाते वक्त मैं 3 लाख वापस कर सकता हूँ, क्योंकि किसान जब 3 लाख मिलता है तो ही हैज़ हिज एग्जिजेंसीज एंड ही स्पेंड्स ऑन इट. एंड देन कम्स द रोल ऑफ ट्रेडर उसकी जगह आता है. 5 लाख का जो माल होता है तब तक 4-6 महीने में उसका 6 लाख हुआ रहता है. ट्रेडर वेयरहाउसिंग को पेमेंट कर देता है एंड इन दिस होल प्रोसेस फार्मर गेट्स पीनट्स. लेकिन यही रोल
ट्रेडर की जगह अगर एफपीओ कर सकते हैं, जिनके खुद के गोडाउन्स है, अगर वो फॉरवर्ड लिंकेज क्रिएट कर सकते हैं, मे बी थ्रू बिग हार्ट और ऑन देयर ओन, एंड देयर दे हैव द रोल ऑफ electronic receipt, that can be the game changer. And in that context, we would like to hear from Saurabh what he has to really offer to the FPOs. Saurabh. Thank you. Is it audible? हेलो ठीक। तो जैसे राजेश जी ने बताया कि इस पूरे प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी नाउ बैंकर्स आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर फंडिंग एफपीओज। सो चूँकि मेरा काफ़ी ज़्यादा कैरियर बैंकिंग में रहा है, एफपीओ एक थोड़ा सा निगलेक्टेड सेगमेंट रहा है इस पूरे सेगमेंट में, जहाँ पे इनपुट के लिए तो उसको सपोर्ट काफ़ी दिया है लोगों ने, बट पोस्ट हार्वेस्ट की सुविधा उन एफपीओस को नहीं मिली। और वहीं पे अगर बैंक्स आएँ और उनको वो पोस्ट हार्वेस्ट की सुविधा भी देना शुरू करें तो इट वुड बी अ बिग गेम चेंजर इन दिस एंटायर थिंग। चूँकि टॉपिक जो राजेश जी ने बताया कि क्लाइमेट, एग्री स्टैक और इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये घूम फिर के यही बताती हैं कि काफ़ी सारा प्रोडक्शन लॉस्ट हो रहा है आज की डेट में। और गोयल साहब की रिपोर्ट भी जो बीच में उन्होंने सबमिट करी थी नेशनल मार्केटिंग पॉलिसी को लेके, उसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि काफ़ी जगहों पे जहाँ पे हमें प्रोडक्शन लॉसेस हैं, उस प्रोडक्शन लॉसेस को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। मार्केट लिंकेज उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एफपीओ गोडाउन तक माल लेकर तभी आएगा जब तक उसको ये एश्योरेंस रहेगा कि जो वो रेंटल पे कर रहा है, जो वो ब्याज दे रहा है बैंकों को, उसके बाद भी जब वो बेचने के लिए 4 महीने 6 महीने के बाद तैयार होगा तो उसको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। अगर ये सारे कॉस्ट बियर करने के बाद उसको प्राइस नहीं मिल रहे हैं, या उसको अगर कोई फ्यूचर मार्केट अवेलेबल नहीं है जिसको वो देखकर ये देखे कि मेरा अगले 3 या 6 महीने में मेरे प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, उसके लिए संभावना बढ़ जाती है कि वो तुरंत ट्रेडर को बेच के अपने बाकी सारे लोन्स और बाकी सारी चीज़ें चुका देता है। तो जो नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स के अंदर काम करते हैं हम लोग, और वेयर हाउसिंग को लेके काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट्स इशुएंस का काम NERL करता है, और हमारे 2 प्रमोटर्स आपके स्पॉन्सर्स भी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड NABARD। हम लोग इंश्योर करते हैं कि आपको अपने पर्टिकुलर वेयर हाउस से माल अगर आप बेच रहे हैं तो माल निकालना ना पड़े, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक अगर प्रोसेस में आ जाते हैं तो जैसे आप डीमैट ऑफ शेयर्स में एक दूसरे को माल बेचते हैं और रिपॉजिटरी में ही माल रह जाता है, वैसे ही आपका एग्री कमोडिटी में भी रहता है कि जहाँ पे भी आपने माल बेचा वो माल वहीं का वहीं वेयर हाउस में दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको माल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला बैंक को पैसा दे के प्लेज को छुड़वा सकता है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, और भी कुछ अभी आने वाले समय में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पैक्स और एफपीओ दोनों को लेकर आते जा रहे हैं, जिसमें कि 16 तारीख को ही प्रहलाद जोशी जी क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बैंकों को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा इन टर्म्स कि अगर कल को कोई पर्टिकुलर बैंक फंडिंग करना चाहता है एफपीओ को पोस्ट हार्वेस्ट लोन के लिए, तो वो क्रेडिट गारंटी स्कीम उनके लिए एक बैकबोन बन जाएगी कि और उनको सपोर्ट देगी कि वो और से ज़्यादा पैसा बैंक एफपीओस को पोस्ट हार्वेस्ट के लिए दे सकें। Hello. Thank you, Saurabh. See, the beauty is this 2 lakh credit facility is beyond your KCC.
आप क्रॉप लोन लेते हो उसके बावजूद ये मिल रहा है. एंड द ब्यूटी इज in initial phases FPOs were struggling, but then government also realized, SFSC realized that if we want to really make this as a big movement, they involved NCDC, NAFED, organizations like NCDC, NAFED in formation of FPOs. And the beauty is even CSCs, public facility centers, facilitating centers have also now become farmer producer organization, or they have established farmer producer organization. Please understand, to keep your enterprise running, आपको 12 महीने काम चाहिए. नहीं तो आम अगर FPO देखोगे कोई भी स्टेट में 3 सीजन होते हैं. मोस्ट ऑफ द FPOs आर स्ट्रगलिंग बियॉन्ड 1 सीजन. एक सीजन में वो धंधा करते हैं, लेकिन आपको अगर आपके पास मैन पावर है तो उसको 12 महीने सस्टेन करना पड़ता है. Yesterday I was talking to few of the students from Vamnicon. One of the student, he was talking about why PACs have failed. I don't differentiate between PACs and FPOs. उन्होंने एक रिसेंट फाइंडिंग यही है कि FPOs या PACs में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ गवर्नेंस नहीं है, वहाँ मैन पावर नहीं है, वहाँ ट्रेंड मैन पावर नहीं है. एंड आई टेल यू, FPOs का दिक्कत यह है कि वो कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं वो उनको 3 महीने या 5 महीने सस्टेन कर रहा है, लेकिन ज़िंदगी तो 365 दिन जीने हैं. अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेन होता है 1 साल में 2 साल में, उसको रिटेन करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले 4-5 साल तो बहुत कष्ट करते हैं, संस्था को खड़ा करते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आपको मोटा मोटी सालाना 10 लाख का खर्चा है. आपको वो 10 लाख का खर्चा कहीं से ना कहीं से निकालना है, और बहुतांश FPOs वो नहीं कर पा रहे. एंड हेंस FPOs should really look into all these aspects of running the business as any other corporate or professional organization is doing. तो हाउ टू बोलते हैं कि आपकी जो बेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. कम से कम आपका धंधा 10 महीना होना चाहिए. खरीफ है, रबी है, उसके बाद समर में आप क्या कर सकते हैं. ये जब तक FPO प्लान आउट नहीं करेगा तब तक आप स्ट्रगलिंग FPOs में ही गिने जाओगे. एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी कैन मेक द बिग डिफरेंस. एंड पर्पसफुली आई एम टेकिंग राहुल. ही इज अ old horse in the agri input industry, and you all know Aries Agrovet is known name, especially in chelated micronutrients, and he already has almost 9,000 distributors across the country. He also wishes to engage with FPOs, but there are very limited FPOs, those who are forthcoming or are already engaged with him. We would like to hear his experience and how he is engaging with FPOs. थैंक यू वेरी मच. आप सबको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है कि हम FPOs के बारे में और डेटा और डिजिटल के बारे में जो एरीज एग्रो कर रहा है उनके बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ केसेस मैं आपको आज प्रेजेंट करूँगा. एरीज एग्रो आज यहाँ भारत के सबसे बड़ी और बहुत रिस्पेक्टेड माइक्रोन्यूट्रिएंट कंपनी है. हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स बनाते हैं. जैसे राजेश ने कहा, हमारे 9,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. उनमें से मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि कुछ FPOs भी उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में शामिल हैं. उनसे हम 90,000 रिटेल पॉइंट तक और 1,20,000 भारत के गांवों तक हमने हमारे माल को पहुंचाया है. आज हम 120 भारत के सबसे बेस्ट ब्रांड को बनाते हैं, और ये ब्रांड्स बने हैं बगैर कोई मास मीडिया एडवर्टाइजिंग. हमने किसानों को जाकर समझा के हमने 55 साल में इन ब्रांड्स को इस्टेब्लिश किया है. और 55 साल में अगर आप हमारी P&L अकाउंट को देखें तो हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज 0. हम 1 रुपया नहीं खर्चे किए हैं हम एडवर्टाइजिंग में. और हमें 3 साल पहले भारत के एग्री बिजनेस के बेस्ट ब्रांड्स घोषित किए गए थे. ये हमने सिर्फ और सिर्फ फील्ड में जाकर डिमांड क्रिएट करके, और इस पिछले कुछ 10 सालों में डेटा और डिजिटल के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से मार्केट में प्रमोट किया. यहाँ जो किसान भाई हैं, जो हमारे FPOs हैं, जो मार्केट में जाते हैं, अगर आप देखें कि सॉइल टेस्टिंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक
एरीज डेटा और डिजिटल और हमारे फील्ड फोर्स के माध्यम से किसान को सर्विस देता है। आप पूरी जर्नी समझिए। शुरुआत में अगर किसान को सॉइल टेस्ट चाहिए, हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए एक मोबाइल टेस्टिंग किट है जो पिछले 15 साल से फील्ड में जाकर उनके सामने टेस्ट करके उनको एक सॉइल हेल्थ कार्ड 2 से 3 घंटे में उनको देता है। पिछले 2-3 सालों में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेसिस पे हमने एक सॉइल स्कैनर भी हमने बनाया है जो एनपीके टेस्टिंग कुछ मिनटों में किसान को फील्ड में जाकर देता है। आज हमारे लाखों सॉइल टेस्ट को इकट्ठा करके हमारे फॉर्मुलेशंस बनते हैं। आज अगर एग्रोमिन और चेलेमिन भारत के सबसे बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जाने जाते हैं तो इनके जो फॉर्मूलाज है वो डेटा के माध्यम से हर साल बदलते हैं। गवर्नमेंट कहता है मिनिमम हर स्टेट में इतने होने चाहिए, लेकिन मिनिमम से ऊपर ये हम कितना डालें, ये सॉइल टेस्ट के माध्यम से, डेटा के माध्यम से हमारे फॉर्मूलाज अपग्रेड होते हैं और किसान को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो एग्रोमिन उनके खेत पे जा रहा है वो पिछले साल के सॉइल टेस्ट डेटा के बेसिस पे बना हुआ है, ना ही कि 1980s में जो बना हुआ है उस फॉर्मूला के बेसिस पे। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। उसके बाद हम जाते हैं हमारे खेतों में और सॉइल टेस्ट का जो डेटा है किसान को रिकमेंडेशंस उनके व्हाट्सएप में पहुंचाते हैं। नॉट ओनली आर दी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स गिवन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड, लेकिन इसको डिजिटाइज करके किसान के मोबाइल पे एक रिपोर्ट जाता है अलोंग विथ रिकमेंडेशंस कि आप इसके बेसिस पे आप अपने खेत को सही कैसे करें। These recommendations are not just एरीज प्रोडक्ट्स। एरीज प्रोडक्ट्स के अलावा अगर किसान को कोई दूसरे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है तो हम उनको डे वाइज डेटा उनको देते हैं और वो उनके व्हाट्सएप में उनको पहुंच जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने के लिए आज हमारे पास भारत का DGCA का पहला DGCA अप्रूव्ड ड्रोन था, जो आज भी हमारे पास DGCA का नंबर 1 लाइसेंस है न्यूट्रिएंट स्प्रे करने के लिए। उसके लिए हमने पिछले 2 साल से तीन ड्रोन यात्रा किए हैं और इन ड्रोन यात्रा से एस्टैब्लिश किया है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो किसान तक, खेतों तक पहुंचाने हैं उनको कैसे पहुंचाए, क्या हाइट तक, क्या पैरामीटर्स में इस ड्रोन को चलाए। और जो भी यहाँ FPOs बैठे हैं, ड्रोन आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। हमारे ड्रोन्स भारत के सबसे बेस्ट क्वालिटी ड्रोन्स हैं और आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रेट में मिलेंगे। जो आप 100 दिन का अगर आप स्प्रे करें 500 या 400-500 रुपया किसान से लेके, तो आपका ड्रोन का जो बिजनेस मॉडल है ये हमारी टीम आपको समझाएगी और आपके लिए एक अच्छा स्प्रे एज अ सर्विस मॉडल आप आपके फार्मर्स को दे सकते हैं। हमारे ड्रोन्स भी डेटा ड्रिवन है, मतलब ये मोबाइल से चलते हैं। ये इट इज़ अ फ्लाई बाय वायर डिवाइस और अगर आपने एक बार खेत को मैप किया, वो भी डेटा आपके पास किसान का एक सॉइल हेल्थ रिपोर्ट ही नहीं, लेकिन हर बार वो ड्रोन यूज़ करेगा तो यू नो एग्जैक्टली उसने क्या स्प्रे किया है, कब स्प्रे किया है, किस क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया है। और जो डॉक्टर के जैसे आपके पास एक UHD कार्ड होता है, अपना हेल्थ कार्ड होता है, वैसे आप FPO या हमारे डीलर्स आपके किसान तक आपका हर एक खेत का आप एक हेल्थ कार्ड रख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी कर पाएंगे। This is a tremendous service. So soil testing, data-driven drone, data-driven formulation upgrades, and spray as a service for drones. I think these are 3 very, very important parameters. आखिरी में बोलूँगा राजेश को देखने के पहले, हमने भारत का सबसे पहला एग्री बिजनेस में लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो आज कम से कम 20 साल से हम पॉइंट्स देते हैं हर एक परचेस को। तो हमारे कस्टमर्स पॉइंट्स लेते हैं और ये पॉइंट्स के बेसिस पे हमें पता लगता है कि उस हर पिन कोड में हमारा क्या माल जा रहा है, और अगर कोई ट्रेंड्स में चेंज हुआ तो सॉइल टेस्ट के पहले हम जानते हैं कि किसान हमसे स्मार्ट है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो नए प्रोडक्ट खरीद रहे, अलग प्रोडक्ट खरीद रहे, और वो डेटा ट्रेंड्स को लेके हमारी फील्ड फोर्स फिर उस एरिया में जाती है और टेस्ट करती है कि व्हाट इज़ डिफरेंट, और उसके बेसिस पे हम और रिकमेंडेशन एकदम टारगेटेड रिकमेंडेशन उस एरिया के लिए भी कर सकते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम इज़ अनदर वे, एंड ये हमारे चार खुद के डेवलप्ड इन हाउस डेवलप्ड मॉडल्स हैं जो हम बहुत अच्छे से किसान तक डेटा और इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं।
आज मैं गर्व से कहता हूँ कि एरीज एक ही शायद एग्री बिजनेस कंपनी है जो 100% डिजिटल हो चुकी है. एवरी सिंगल सेल एंड परचेज इज नाउ डन इलेक्ट्रॉनिकली. हम all our entire products are now available on our apps and everything is done now using electronic means, and the entire COVID phenomenon only accelerated this, but farmers have really amazed us as how nicely they have adopted these technologies. Thank you. थैंक यू राहुल. ये तीनों का मैं सुनते सुनते मुझे कल का याद आ गया. Yesterday I was watching one program. राज कपूर जी की कल 100वीं जन्मदिनी थी, एंड द होल कपूर फैमिली वॉज सिटिंग अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे. एंड ड्यूरिंग द डिस्कशन आई कुड मेक आउट प्राइम मिनिस्टर वॉज सेइंग दैट राज कपूर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट पावर. यानी आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, एंड स्पेशली रशिया, मेरा जूता है जापानी, एंड रशियंस लव दैट सॉन्ग. दे मे नॉट अंडरस्टैंड द वर्डिंग्स, लेकिन वो ट्यून लगती है तो सब डांस करने लगते हैं. एंड इफ़ यू लुक एट सेंट्रल एशिया, जहाँ आजकल बहुत घमासान हो रहा है, उनका म्यूज़िक और ये मेरा जूता है जापानी, इट कोरिलेट्स, एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी known song in this region. All said and done, why I am bringing that topic here is, you are farmer producer company. आप किसानों के संगठन है जो 500,000 2,000 किसानों के साथ एंगेज हुए हैं. हमारी ये जो कंपनियां हैं ये तो अपना धंधा कर रहे हैं, बट when these FPOs really engages with this technology driven organizations, everybody is here into the business. Please understand, यहाँ कोई चैरिटी करने के लिए खड़ा नहीं है, एंड आपकी FPO भी उसी के लिए है. Yes, you are worried about your farmers. You want to engage with them, you want to provide them better services, but everything has a cost. And the good thing is, इंटरमीडिएटरी या बाहर का आदमी की जगह आप FPOs के तहत, या फिर हम बोलेंगे कि पैक्स के तहत आप किसानों को सर्विस दे रहे हैं. बट इफ़ यू वांट टू रियली एंगेज विथ योर फ्लॉक्स, इफ़ यू वांट टू रियली एंगेज विथ योर मेंबर्स, दिस इज द सॉफ्ट पावर. अगर आप एरिस के अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, बिग हार्ट के अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो क्या इनके पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, क्या आपके वो 800,000 किसानों को नहीं मिल सकती है? पर्सनली आई हैव वर्कड वेरी क्लोजली विथ हंड्रेड्स ऑफ टोमेटो फार्मर्स. हम कागोमेको और बहुत सारी संस्थाओं के साथ एंगेज होते हुए, रैलीज के साथ एंगेज होते हुए, यानी लोगों की प्रोडक्टिविटी 2-2, 3-3 गुना बढ़ाई है. जो आम किसान जो टोमेटो प्रोडक्शन में दिक्कत करता था, कागोमे के साथ एंगेज होके उसका जो प्रोडक्टिविटी 12-13 टन का था, तो हमने 25, 30, 35, 40 टन तक लिए गए हैं. What I mean to say is, this is all possible with the help of technology. Every organization has their foot on the foot soldiers, उनके ऑलरेडी फील्ड पे है, लेकिन अगर कोई FPO उनके साथ जुड़ जाती है और आपके पास 2-4 कर्मचारी भी है और आपके 1000 किसानों को ये ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मिलता है, तो आपकी संस्था को 4 चांद लग सकते हैं. दैट इज़ हाउ यू कैन रियली इवॉल्व योर बिजनेस. और ये सोच जब तक आप FPOs में नहीं आती है, तब तक आपका जीना भी बहुत स्ट्रगल रहने वाला है. एंड यू हैव टू गेट ऑन टू द बैंड वैगन, क्योंकि आज के दिन में अगर आप टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो, पंतप्रधान हर बार बोलते हैं कि ड्रोन सखी, दे वांट टू इवॉल्व. 1 लाख ड्रोन सखी उन्होंने ये किया है. एवरी अदर कंपनी वर्थ इट्स सॉल्ट, स्पेशली इन फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, बायर, सिंजेंटा, राहुल सर ने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया है. तो दे वांट पीपल ऑफ कैलिबर. आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो मैंने आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे. दे हैव मेड बिजनेस आउट ऑफ स्प्रेइंग. ड्रोन स्प्रेइंग से उन्होंने बिजनेस खड़े किए हैं. एक बंदा जो मैं कर्नाटक में उसको मिला, बेलगांव के नज़दीक, ही स्टार्टेड विथ 1 ड्रोन एंड नाउ ही हैज़ ऑलमोस्ट 5 drones. And he is covering almost 4,500 acres around his village. That's the beauty. Many of these people, once I was traveling in Rajasthan, एक बंदा जो स्वराज के साथ काम करता था, उसने स्वराज की नौकरी छोड़ दी. It was a pre-COVID, and he is now owning almost 13 or 14 tractors, harvesters,
और उसने उसका एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है। ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये सब फैसिलिटीज सब्सिडीज एफपीओस को मिली हुई है। इनकी इक्विपमेंट बँक्स खडी है, ते गंज खात आहेत, त्याच्यातनं काही काम होत नाही। मैं जो मराठी में बात कर रहा हूँ आपको समझ रहे हैं। सो अनलेस एंड अंटिल द पीपल at the helm of the business in FPOs, they come forward, they embrace this technology, then only they can move forward. So in this session, now second round, I would ask each and every panelist to really help us, our FPOs, give the perspective how they can engage with, say like NERL or Big Heart or Aries Agrovet to enhance their business. सौरभ। सो राजेश जी, जैसे आपने कहा कि एफपीओ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे प्रोग्राम्स की अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जिसका कि वो लोग फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ अगर एफपीओ उन सारे प्रोग्राम्स की अवेयरनेस अपने लोकल जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, अगर उनसे संपर्क में आते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स का उपयोग वो लोग कर सकते हैं। जहाँ तक NERL की बात है, जैसा कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने वाले हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के साथ काफ़ी बातचीत हम लोग की चलती है, जिसमें कि ये निकल के आया है कि जो भी पैक्स या FPO आप कुछ भी कह लें उनको, उनके लिए मतलब एंड रिज़ल्ट तो फार्मर ही है। फार्मर्स के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं ये लोग लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि उनको फाइनेंसिंग की भी सुविधा उनको इजी मिले। अगर आप टोटल मार्केट आज देखें तो KCC का मार्केट करीबन 12 लाख करोड़ का है। बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि फॉर्मल सेक्टर का है। इनफॉर्मल इसके अलावा कुछ और भी होगा। 12 लाख करोड़ और 12 ही सुनने हैं। हाँ, सो 12 लाख करोड़। सो और अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट का देखें तो इट इज़ 50,000 करोड़, ओके, विच इज़ मिनिस्क्यूल एज कम्पेयर टू प्री हार्वेस्ट। और जो पोस्ट हार्वेस्ट की भी जो फाइनेंसिंग है वो इसीलिए कम है क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेडर्स, उसमें फार्मर है ही नहीं इन दिस एंटायर एक्टिविटी। सो अगर फार्मर थ्रू FPO, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे फार्मर इतने सक्षम हैं कि वो खुद पोस्ट हार्वेस्ट ले सकें, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, बट अगर वो FPO के माध्यम से अपने माल को रखें वेयर हाउस में, और इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट, जो कि फार्मर के लिए तो बहुत ही मिनिमल रेट में गवर्नमेंट ने रखी हुई है, कुछ 3 या 4 रुपये मेट्रिक टन, और कई जगह तो उन्होंने उसको फ्री भी किया हुआ है। ये एक बड़ा माध्यम बन सकता है उनके लिए कि उनकी उपज का उनको सही दाम मिले। और अगर गवर्नमेंट डबलिंग ऑफ इनकम की बात करती है तो डबलिंग ऑफ इनकम तभी हो सकती है जब उनको इनपुट्स अच्छे मिले और आउटपुट का भी उनको उस हिसाब से सही प्राइस मिले। तो मेरे ख्याल FPO के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस इकोसिस्टम में आए। थैंक यू सर। प्लीज अंडरस्टैंड, स्पेशली FPOs, यू आस्क एनी बैंकर, वो FPO को लोन नहीं देना चाहता है, बराबर है ना? क्या चुकीचं बोलतोय का मी काही? हाँ, आहे की नाही? बट द सेम बैंकर, ही इज विलिंग टू गिव लोन टू द ट्रेडर। तर दूध का दूध, पानी का पानी, तुम्हाला हे कळायला पाहिजे। यू नीड टू अंडरस्टँड वाय द बँकर इज विलिंग टू गिव लोन टू द ट्रेडर अँड नॉट द FPOs। आता आपण पुण्यात बसलोय, वेस्टर्न महाराष्ट्र, इट्स अ शुगर बाउल। लुक एट द इकोसिस्टम ऑफ शुगर फैक्ट्री। सर्कल कंप्लीट हो रहा है। 25,000 40,000 जो भी मेंबर फार्मर्स है, दे आर ऑल रजिस्टर्ड विद द फैक्ट्री। उनका गन्ना उधर जाता है और उसको पैसा मिलता है। कभी के बाद प्री सीजन में उसको कुछ लोन लेना रहता है। अभी तो ऑलमोस्ट मेनी ऑफ देम हैव देयर ओन कोऑपरेटिव बैंक। देयर द सर्कल गेट्स कंप्लीटेड। एंड अनफॉर्चुनेटली द चैलेंज विथ यू पीपल इज, आपका सर्कल कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, क्योंकि बहुतांश बार आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक दूसरे से झगड़ा करने में वक्त निकाल देते हो। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर मेंबर फार्मर्स। सो यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। जब तक आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहेंगी, लेकिन उसको भी कुछ लिमिट है।
पहले तो क्या पोखरा हुआ था, उसके पहले MSCP हुआ, अभी बट बियॉन्ड दैट, if you want to really stand on your own legs as an enterprise, you have to ensure the business. और जब तक आप किसान को इनपुट्स देके उसका माल जब तक खरीद नहीं करते हैं, तभी सर्कल कंप्लीट होने वाला है. हमने भी मैं कम से कम खुद 150-200 FPOs फॉर्म किए हैं या लोगों को मदद की है, बट इन 95% ऑफ द सिचुएशंस they have all failed because never they had a business model. And here is the opportunity for you to get into or engage with this organization to create or to evolve a business model. जब तक आप innovation या innovative thought process आपके मॉडल में नहीं लाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं. 90% of the FPOs are just existing for that, क्या आपका नाफेड और जो खरीदी होता है उसी के लिए वो FPO बनाते हैं. सो यू हैव टू, अनलेस एंड अनटिल यू चेंज योर माइंडसेट, यू गेट इनटू ऑल दिस प्रोडक्शन and backward integration, forward integration, things are not going to evolve. And that is where our friend would give some inputs, because इन्होंने कॉर्न में काफ़ी अच्छा काम किया है. although corn is not a major crop in Maharashtra, जैसे 2-4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कॉर्न इज़ नॉट, बट ऑल सेड एंड डन सटाना उस एरिया में कॉर्न बहुत बड़े पैमाने पे होता है. लेकिन देर आर अदर कमोडिटीज़. इफ़ यू कुड शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड हाउ यू कैन हेल्प FPOs complete that circle, that would be really. Yeah. So let's me elaborate more. I will say first let's talk about the technology. तो टेक्नोलॉजी, लेट्स एक्सेप्ट कि आप अकेले अगर हर FPO टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहेगा तो वो डेवलप नहीं कर सकता. हमारी सक्सेस के पीछे अगर मैं एक बताऊं क्या है या बिघाट की फ़िलोसफी, तो हम हमेशा बिलीव करते हैं कोलैबोरेशन पे. अगर कोई चीज़ बनी हुई है पहले तो उसको रीयूज़ कर लो, कोलैबोरेट करो, एक स्केल पे पहुंच जाओ, उसके बाद में लगे कि हमें रिप्लेस करना है, डू इट. तो मैं कह रहा हूँ हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है. पहले मैं आउटपुट साइड में बताता हूँ कि आउटपुट साइड में हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इंटरनली क्लोज लूप है. हमें आज की डेट में ये मालूम है कि हमारा कौन सा सप्लायर किस तरह का क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, उस क्वालिटी के पैरामीटर उनके लिए क्या हैं. बायर साइड में मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे पास में बायर के बाद में रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बेस पे मुझे मालूम है कि वो क्वालिटी की डेफिनेशन उसके लिए क्या है. ठीक है, तो सच प्लेटफॉर्म यू कैन यूज़. दूसरा SDP का बिग ट्रेस प्लेटफॉर्म है. यदि हम साथ में काम करते हैं तो दैट ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म यू कैन यूज़. और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम बोलते हैं कि आपका अगर वी आर ट्राइंग, 3 लेयर होती है ABC, हमने उसके ऊपर एक और लेयर बनाई है जिसको कि हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट रेडी के लिए है. यदि अज्यूम कर लो किसी कारण से वो एक्सपोर्ट रेडी नहीं हुआ, या हमारा टारगेट है US, जापान, जहाँ पे कि हाईली स्ट्रेंजेंट नॉर्म्स हैं, वहाँ के लिए भी फेल हुआ, पर उसके बावजूद भी वो बिग क्वालिटी, अपनी जो बेस्ट क्वालिटी उसके अंदर वो क्वालिफाई हो जाएगा. सो ये तो एडवांटेज हुए टेक्नोलॉजी के, जो कि हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट हमारा बिग मुद्रा, जो बताया कि जो हम जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी वो फ्री है. तो जैसे किसान मुद्रा है, तो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ कि एक्सिस बैंक के साथ ही हमने जो है FPO को लोन के लिए हम एनेबल किए हैं किसान मुद्रा में. और मेरी एक टीम है जो कि इंस्टीट्यूशनल टीम है, क्योंकि यहाँ पे एक 1-to-1 कनेक्शन चाहिए होता है, तो दैट टीम जो है वो आपके साथ में क्लोजली काम करेगी. तो आपको एक बता दिया प्रोड्यूस, जिसके अंदर आप अगर SDP प्रोग्राम के अंडर में आते हैं तो हमारे साथ में काम कर सकते हैं. आप जो बैंकिंग से हमारा सपोर्ट है उसके साथ में हम काम कर सकते हैं. तीसरा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है अगर कोई भी फाइनेंशियल पार्टनर है तो क्रेडिट हिस्ट्री. आज की डेट में आप लोगों के पास में क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है. हम डिजिटली आपके लिए क्रेडिट आ गया, आपके एसोसिएटेड फार्मर्स के लिए क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं. वो क्रेडिट हिस्ट्री अगर होगी तो बैंकर्स को आपको लोन देने में आसानी होगी. रिस्क एनालिसिस, बीइंग अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, हम रिस्क एनालिसिस कर पा रहे हैं कि किस जगह पे कौन सी क्रॉप जा रही है, कौन सा फार्मर क्या खरीद रहा है, उस जगह पे किस तरह के केमिकल यूज़ हो रहे हैं. हमारे पास आज की डेट में ये डेटा है कि किस जगह पे ग्रीन केमिकल यूज़ हो रहे हैं, किस जगह पे रेड केमिकल यूज़ हो रहे हैं. और यदि आप ग्रीन केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे मालूम है कि उसका बेटर प्राइस मिल सकता है. तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो एसोसिएशन है, ये आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट करेगा यदि कोलैबोरेशन से काम करेंगे. तो
एक लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, मोस्ट ऑफ दी जो एफपीओ स्टार्ट किए वो इनपुट को लेके स्टार्ट किए, और उसमें एक मेजर चैलेंज आता है क्योंकि जब आप प्राइस निगोशिएट करने जाते हो तो कहता है आपको कि आप 1 केस ले लो, 2 केस ले लो, 5 केस ले लो, और आप एक मेजर जो कैश फ्लो या पीएनएल की बात करें मिस कर देते हैं कि एक इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है, एक इन्वेंट्री का लॉस होता है क्योंकि आगे अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकी है तो वो नेक्स्ट ईयर आपके लिए लॉस में चली जाएगी। और वहीं पे ही हम एफपीओ को सपोर्ट करते हैं कि आप केस मत बाय करिए, आप इवन एक सिंगल बोतल बाय करिए, आपको वही बिग डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्राइस मिलेगा, एक बल्क वाला प्राइस मिलेगा, आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो प्रोडक्ट पे नहीं मिलके आपकी ओवरऑल सेल्स वैल्यू पे मिलेगा। आप डेली परचेस करिए पर अपनी इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करिए, अपने कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करिए। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल आई शेयर, बट वंस विल वर्क टुगेदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम साथ में काम कर सकते हैं। यदि कोई गैप्स होंगे टेक्नोलॉजी साइड में तो हम रेडी हैं उस गैप्स को एड्रेस करने के लिए, बट लेट्स वर्क टुगेदर। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इन द वेरी फर्स्ट आई विल जस्ट गिव यू वन एनेक्डोट। हमने एक कंपनी फॉर्म की थी एफपीओ, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, इनपुट की दुकान खोली। पहले साल करीबन एक 15 लाख का बिजनेस किया, लेकिन हमारा इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ सीज़न, रबी सीज़न, करीबन 70,000 का इन्वेंट्री का एग्जॉस्ट हो गया था, यानी जो क्या डेट रहती है, कौन सा एक्सपायरी डेट, तो 70,000 का इन्वेंट्री हमारा एग्जॉस्ट हो गया था। एंड देन वी रियलाइज, सी हाउ वी लर्न थ्रू, एंड व्हेन यू कम टुगेदर यू रियली गेट टू नो। जो डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें माल दिया था वो बिल्कुल 6-8 महीने का एक्सपायरी का दिया था, वेर एज व्हेन यू एंगेज विथ बिग ऑर्गेनाइजेशंस वो कम से कम आपको 2 साल का 2.5 साल का एक्सपायरी डेट का बेनिफिट देगा। एंड वी रियलाइज एट द एंड ऑफ जर्नी बाय रबी सीजन हमने करीबन 70,000 का इन्वेंट्री ऐसा निकाला जिसका एक एक्सपायरी हो गया था, एंड नोबडी वाज विलिंग टू बाय इट। इवन फार्मर्स आर नाउ स्मार्ट एंड स्पेशली ग्रेप फार्मर्स, उसका हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने डिस्काउंटेड रेट पे वो बेचा। एक 70-80 हज़ार का जो इन्वेंट्री था हमने सम हाउ वी कुड डिस्पोज इट ओनली फॉर 30,000 बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम हुम वी बॉट इट ही वॉज नॉट विलिंग टू, ऑफकोर्स वो लिक्विडेट करने के लिए इच्छुक नहीं था। दैट वॉज अ फर्स्ट लर्निंग फॉर अस, एंड दैट इज वेयर all these small learnings FPOs can get by engaging with organizations like Sachin's one. And briefly, before I got into that point, even Rahul did mention about their drone initiative. And I tell you, for many of these FPOs, this is the really boon. You have to really think through, और आपका जो equipment bank है उसमें अगर spraying as a service अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो किसानों को, आई टेल यू, जब से ये कौन सा स्कीम आया है जो लाड़की बहन क्या नहीं ड्रोन दीदी तो छोड़ो, अभी जो हर एक को कितना पैसा मिल रहा है क्या, हाँ लेडी, आपको स्पेशली हार्वेस्टिंग टाइम में आपको लेबर नहीं मिलते, बराबर है, फॉरगेट हार्वेस्टिंग टाइम, इवन सोइंग वक्त आपको लेबर नहीं मिलते क्योंकि उनको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है। इसी सम हाउ शी इज गेटिंग इनफ, एंड बहुत बार बंदे काम को कब जाते हैं उसको शाम को तलब रहती है, तो उस दिन काम करता है, 100-150 रुपये कमाता है, घर में 50 देता है, एक पौवा लेके आता है, एंड दैट इज द फैक्चुअल सिचुएशन ऑन द फील्ड। इफ यू गो इन रूरल एरियाज दैट्स द बिग प्रॉब्लम। फ्रीबीज इतना फ्री में मिल रहा है, लोगों की काम करने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि आपको वैसे भी राशन फुकट में मिल रहा है। एग्जिजेंसीज के वक्त ही वो फील्ड में काम करने के लिए जाता है। आजकल लेबर प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है कि लेबर नहीं मिलता है आपको। लेबर के रेट फार्मर्स विल टेल मी बेटर, बहुत महंगे हो गए, कपास बेचने के लिए आपको लेबर नहीं मिलता है, एंड दैट इज वेयर मैकेनाइजेशन इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस होल इकोसिस्टम। एंड लेट अस लिसन फ्रॉम राहुल कि आप एफपीओस के लिए वो क्या प्रोजेक्ट दे सकते हैं। थैंक यू राजेश। मैं आपको एंड आई एम ग्लैड कि आपने ड्रोन के बारे में बात किया आखिरी आपके रिमार्क्स में, बिकॉज मैं आपको अभी कुछ मिनटों में 2-3 बिजनेस मॉडल आराम से समझा दूंगा और मेरी टीम यहाँ बैठी है, दे आर हैप्पी टू टॉक टू यू फर्दर।
हमने ड्रोन के बारे में काफ़ी बात की और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी सब्सिडी या कोई भी लोन देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है अगर आप हमारा बिजनेस मॉडल को सही से यूज़ करें। सबसे फर्स्ट कि ड्रोन, हमारा जो ड्रोन है उदाहरण के बेसिस पे 5 लाख प्लस जीएसटी का हमारा कॉस्ट है, इंक्लूडिंग द एंटायर सेट ऑफ बैटरीज एट्सेट्रा। अलग अलग मॉडल्स है, एवरेज 5 लाख का आपका कॉस्ट है। अब 5 लाख का अगर आपने कॉस्ट लिया और आपने अगर स्प्रे एज अ सर्विस आपने प्रोवाइड किया किसान को, हमने ये देखा है कि डेली 30 एकड़ आप आराम से ड्रोन से कवर कर सकते हैं सुबह और शाम के स्प्रे में। 30 एकर्स दिन का कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आपके फार्मर्स हैं, आपके फार्मर्स के ही 30 एकड़ होंगे। और साल के आपको 100 दिन ड्रोन को चलाने, नॉट 365 डेज, 100 डेज इन अ ईयर। 100 दिन के ऊपर स्प्रे साइकिल होता भी नहीं है। 100 दिन 30 एकड़ पर डे और 300 रुपया से 400 रुपया किसान लेता है। आप बोलो कम लेवल पे 300 रुपये के हिसाब से अगर आपने चार्ज किया किसान को, जो उसके लेबर कॉस्ट से बहुत कम है, 9 लाख रुपए आपको 100 दिन के स्प्रे में निकल आते हैं। ड्रोन का कॉस्ट है 5 लाख। क्यों आपको लोन चाहिए? वाई डू यू नीड अ लोन? इवन इफ यू टेक अ लोन, आप 6 महीने में उस लोन को वापस कर सकते हैं। फाइंड मी अ बिजनेस मॉडल वेयर यू हैव अ कैप्टिव बायर, आपके खुद के डीलर, आपके खुद के मेंबर्स हैं। 30 एकड़ दिन का कोई भी गांव में आप आराम से आप स्प्रे साइकिल 100 दिन के लिए चला सकते हैं। और 300 रुपये अगर आपने बोला किसान को, तो उसके लेबर कॉस्ट से कम आधा से ज़्यादा कम ये रेट होता है। तो आप अगर 9 लाख रुपए आपके ड्रोन से खरीदते हैं, तो स्प्रे एज अ सर्विस परहैप्स ये सबसे पहला आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए फॉर एनी एफपीओ, फॉर एनी बिग डिस्ट्रीब्यूटर। और हमारी टीम यहाँ यही समझाते हैं। दूसरा मैं आपको बिजनेस मॉडल दूंगा। हमने सॉइल टेस्टिंग के बारे में बात की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान को सॉइल टेस्टिंग की होती है। वो सॉइल टेस्ट बहुत दूर दूर जाके उनको करना पड़ता है, रिपोर्ट को टाइम लगता है। यहाँ हम ऑन फील्ड सॉइल टेस्टिंग देते हैं। हमारे पास एक डिवाइस है जो 30,000 टेस्ट 1 लाख रुपए में करेगा। 1 लाख रुपीज़ 30,000 टेस्ट आप फार्मर के गेट पे जाके कर सकते हैं। मतलब 3.5 रुपया पर टेस्ट हार्डवेयर का कॉस्ट। उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट 30 से 35 रुपया सॉफ्टवेयर का कॉस्ट होता है, क्योंकि हर बार आप उसको बटन को दबाएंगे तो जैसा मोबाइल रिचार्ज का आप पेमेंट करते हैं वैसे 30 रुपया आपके अकाउंट से कट जाएगा। टोटल 40 रुपया पर टेस्ट में आप ऑन फील्ड सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। आपके लोगों का टीएडीए भी आप जोड़ दो, 100 रुपये के अंदर किसान को आप सॉइल टेस्ट करके कमा सकते हैं। और कुछ ही महीनों में वो 1 लाख रुपया आपका निकल के आएगा। ये दो आपने बिजनेस मॉडल समझाए। ये 2 बिजनेस मॉडल मैं आपको पेश कर रहा हूँ। कंप्लीटली ओपन, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट डिस्कशन कि आप आज का आज ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और हम आपको इसमें हेल्प भी कर सकते हैं। तीसरा, बिकम आवर डिस्ट्रीब्यूटर। हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे गांव-गांव में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गांव-गांव में हमारे रिटेलर्स हैं। स्पेशलाइज्ड एग्री इनपुट्स में, एनपीके और दूसरे इनपुट्स में बात नहीं करता, लेकिन स्पेशलाइज्ड एग्री इनपुट्स में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर 40 से 50% आराम से उनका गैप होता है, क्योंकि उनको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लोग लगाने पड़ते हैं, किसान को क्रेडिट देना पड़ता है, लेकिन उनके पास 40 से 50% कमाने का एक ऑप्शन है। These are 3 सुपर बिजनेस मॉडल्स। कोई अर्बन एरिया में, कोई बम्बई में मुझे इस तरीके का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाने वाला कोई बिजनेस मॉडल है नहीं। और यही बिजनेस मॉडल से हमारे 90,000 लोगों ने कमाया है और हमारे किसान ने अपने इनकम को डबल किया है। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दीज काइंड ऑफ वेरी वेरी रोबस्ट बिजनेस मॉडल्स जो हमारे जैसे कंपनी आप तक पहुंचाते हैं। एंड ट्रस्ट वॉट यू हियर। आप ट्रस्ट कीजिए, 6 महीना इम्प्लीमेंट कीजिए, वी विल शो यू द रिजल्ट। और उससे जो आपके मार्केट में स्टैंडिंग होगा, जो गुडविल बढ़ेगा, इट्स अनमैच्ड। एक आपको बेनिफिट दूंगा। हमारी कंपनी है, आपका कोई बड़ा एफपीओ है, हम आपके ब्रांड में, एफपीओ का ब्रांड में हम आपको माल बना के देंगे।
आप क्यों हमारा ब्रांड बेचें, आप खुद का ब्रांड बनाओ, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। प्रोडक्ट फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ब्रांड, अपना प्रेजेंस बनाओ, हम आपको माल देंगे। These are 4 very, very good business models. We are happy to work on it tomorrow and my team is present. They are very happy to help. थैंक यू राहुल, मुझे पर्ची मिली है कि अगला सेशन चालू होने वाला है। नंदलेस, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रियली जॉट डाउन द नंबर्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस मॉडल। सो ऑन बिहाफ ऑफ सौरभ जी, आप किसका नंबर देना चाहोगे ताकि इफ एफपीओज आर इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग विथ यू फॉर वेयर हाउसिंग, स्पेशली रिसिप्ट ENWR, तो किसको संपर्क कर सकते हैं? चूँकि एफपीओ को थोड़ा सा इनिशियल टाइम में समझाने की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो मैं अपना ही नंबर दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपना नंबर देने के लिए। तो आई शुड आई गिव माय नंबर? ओके, सो पीपल डाउन द नंबर। आप देखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम फॉर योर वेयर हाउसिंग। सो ऑल दोज एफपीओ स्मार्ट के अंतर्गत या कोई भी स्कीम के अंतर्गत आपके पास गोडाउन है, पैक्स है, प्लीज एंगेज विद देम, अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मॉडल and then thereafter you can move forward. Sir, aap karo. So you can note down, it is 773845 1112. 773845 1112. Sir, नाम दिख रहा है सर का, मिस्टर सौरभ खन्ना। सचिन, Yeah, you can note down my number, but request WhatsApp करिएगा अगर फ़ोन नहीं उठाया तो। नंबर नोट कर लीजिए, 7411053168, 7411053168। प्लीज़ डू व्हाट्सएप और मैसेज डालिए, डेफिनेटली आपको या तो मैं रेस्पॉन्ड करूँगा या मेरी टीम रेस्पॉन्ड करेगी। प्लीज अंडरस्टैंड, बिग हार्ट इज अक्रॉस द कंट्री, उनके काफ़ी कस्टमर्स है, बट द ब्यूटी इज वाइल डूइंग व्हाट दे आर डूइंग अक्रॉस द कंट्री, जो 700 डिस्ट्रिक्ट्स है, दे आर trying to identify the district where they could have their FPO located so that they can cater to the market within that 50 kilometers area, and that is the opportunity for your FPO to engage with them. आपने उनका नंबर शायद नोट कर लिया है, प्लीज़ उनको फ़ोन मत कीजिए। द बेस्ट वे इज़, आपका जो इंट्रोडक्शन है आप व्हाट्सएप पे भेज देते हो ना, तो आदमी जब शांत बैठे रहता है फ्लाइट में या ये वो, तब वो देखता है और आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, और एटलीस्ट ही विल पुट यू ऑन टू द राइट पर्सन whom you can interact with. So these are all star of their organization, they are the owners. So please engage with their marketing staff and they would definitely help you. Rahul. I have my best people sitting in the audience. So Omkar and Bhavesh are there. They take care of this entire kind of thing. So if you can just stand up, identify yourself. Please look at them. They are the best people to contact. Please find out. They will coordinate with you instantly. And I think the best people are the guys who are standing here to help you with this purpose. Thank you. So before we wind up, if there are any questions, we can take 2 questions. If there are any. ऑडियंस में किसी को कोई सवाल है? ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस पेशेंट, थैंक यू। Sir, please. I'd like to felicitate also. Thank you, sir. Thanks a lot. This was wonderful session. It was wonderful knowledge sharing also. I wish या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोक जर आलेले असते. राहुल सर, in future is it possible to pick up some audience from the drone, with the drone? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर है, अगर ऐसा हो जाता कि हम ड्रोन के सहायता से लोगों को यहाँ पर उठा के लेके आते तो है ना, बट एक्सीडेंट या क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और रजिस्ट्रेशन काफ़ी हुए लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर है नहीं, बट इट वॉज रियली वंडरफुल एंड मेनी पीपल हु आर layman, even they have understood whatever you were talking. So wonderful. It was a wonderful session. Since yesterday I'm here and this is the first time that people have shared their direct numbers also. You have noted. Please don't send good morning and good night messages. Yeah, that is very important. And Rajesh sir, there is a request sir, because you're talking about that circle. And we are having one wonderful circle over here after session.
session gets over, we are having wonderful lunch also. So complete the circle. Please wait till the lunch. Our Director General of Bombay Chamber of Commerce and Industries, Khosla sir, is here. I request him to felicitate all these dignitaries, all the speakers and moderators, sir. Please give them big hand. आपण टाळ्या वाजवून त्यांचा सत्कार करणार आहोत या ठिकाणी. सौरभ खन्ना सर. Mr. Sachin Nandwana, co-founder, Big Heart Agro Private Limited, and Dr. Rahul Mirchandani, Managing Director, Aries Agro. आणि आजचे या सेशनचे मॉडरेटर मिस्टर राजेश उरकुडे सर, डिजिटल फूड इनिशिएटिव्ह TCS. थँक्यू. ग्रुप फोटो या. वन ग्रुप फोटो.